Good morning, students. Welcome back after a long weekend that you got. I hope all of you have completed your previous pending work. And welcome to Unit 2. We'll be moving to our next unit from today. Today, the first thing that we are doing is a poem. The name of the poem is from your Bal Bharti itself, okay? The name is How Doth the Little Busy Bee. I will explain you the meaning, don't worry, but this is the name. Put this heading at the top of your notebook and we shall begin. Okay, first let's see what is our objective for today. We will be able to connect the poem with someone in our own lives. तो जो भी हम इस कविता में पढ़ेंगे हमको अपने लाइफ में किसी ना किसी से इसको कनेक्ट करना है. ओके, फॉर एग्जाम्पल वील बी रीडिंग अबाउट अ बी. एक हम मधुमक्खी के बारे में पढ़ेंगे एंड व्हेन वी रीड अबाउट इट वी हैव टू थिंक कि हमारी लाइफ में ऐसा कौन इंसान है जो इस बी का रोल निभाता है. ओके, BEE, बी मीन्स मधुमक्खी. ओके, राइट दिस ऑब्जेक्टिव एंड वी शैल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. Okay, so bacha, this I already told you in the last poem. I have just put it again to remind you the best thing about poetry. No understanding is wrong understanding when you read a poem. You can perceive it in your own way. आप एक कविता को कैसे समझते हैं उसका कोई सही या गलत अंडरस्टैंडिंग नहीं होता. आप अपने तरीके से भी समझ सकते हैं. अगर मैं बोल रहा हूँ ये एक हनी बी का कहानी है, आप बोल सकते हैं नहीं ये तो शायद जब पोएट हनी बी बोल रहा है तो शायद उसका मतलब कोई और इंसान है जो हनी बी की तरह है. ओके, तो आप सबका एक अपना अंडरस्टैंडिंग, एक अपना एक्सप्लेनेशन हो सकता है. ओके, जैसे हमने द टाइम ऑफ सिल्वर रेन पढ़ी थी. सो इफ आई एम सेइंग इट्स अ स्टोरी अबाउट रेन, यू कैन से नो दीदी आई थिंक इट्स स्टोरी अबाउट अ पर्सन हु ऑलवेज गिव्स समथिंग टू द अदर्स. Like rain gives life to others, I think it's a poem about a mother who gives life to who gives life to her children. Okay, so this is how you can have many understanding of one poem. What the poet or poetess means is not the only explanation to that poem. You can have your own explanation. आपकी खुद की अपनी एक explanation हो सकती है. कुछ भी सही या गलत नहीं है. Okay? Great. Now, how will we answer today's question? You remember our objective, right? हम अपनी लाइफ में किसी ना किसी से कनेक्ट करेंगे हनी बी को और फिर हम अपना एक्सप्लेनेशन देंगे. सो हाउ विल वी डू इट? फर्स्ट, वी विल अंडरस्टैंड दीदीज एक्सप्लेनेशन. सेकेंड, वी विल कनेक्ट हनी बी टू समवन इन आवर लाइफ. थर्ड, वी विल राइट आवर ओन एक्सप्लेनेशन. पहले आपको समझना है, फिर आपको कनेक्शन बनाना है और फिर आपको खुद से एक्सप्लेन करना है. Okay? Great. Let's move ahead. So this is the poem. I'll quickly read it for you and then explain. How doth the little bee improve each shining hour and gather honey all the day from every opening flower? How skillfully she builds her cell, how neat she spreads her wax, and labors hard to store it well with the sweet food she makes. Okay, so now the poet is telling us about a honey bee. एक मधुमक्खी का कहानी बता रहे हैं. The poet is saying how doth the little bee. बच्चे doth मतलब जैसे हम do या does बोलते हैं. So doth is ancient word for saying do or dot. So you can also say how does the little bee improve its shining hour. मतलब एक honey bee हर घंटा improve करती है अपनी मेहनत से, उसमें improvement आता है, growth होती है. And gather honey all the day from every opening flower. Gather means to collect something. Like I gathered all the books before going to school. School जाने से पहले मैंने सारी books इकट्ठा कर ली. Okay, gather means इकट्ठा करना. So honey bees honey gather करती है, right? So they are saying सारे flowers में से वो honey gather करती हैं. So basically वो लोग flower का juice लेते हैं और उसको honey में convert कर देते हैं. Okay. How doth the little busy bee improve its shining hour and gather honey all the day from every opening flower? How skillfully she builds her cell, how neat she spreads her wax. Cell here means बच्चा home. जो हनी बी का घर होता है, हनी कॉम, हम उसकी बात कर रहे हैं. ओके, स्किलफुली मतलब बहुत टैलेंट के साथ. ऐसा नहीं कि कैसे भी कर दिया, बहुत ज़्यादा स्किल और टैलेंट के साथ
वो अपना घर बनाती है. इफ यू हैव सीन अ हाउस ऑफ अ हनी बी इज it has a particular shape which is not easy to make. So honeybee makes it with full skill and talent. And very neatly she puts her wax all over her house. If you don't know how wax come, wax मतलब पता है ना आपको, honey, ओके, शहद. तो शहद मतलब शहद कैसे निकलता है आप देखिएगा. हनी बी का जो हनी कोम होता है जहाँ वो रहती है, हम उसको ऐसे पिचकाते हैं, उसमें से शहद निकलता है. सो हनी बी बेसिकली वो पहले पूरे में वैक्स स्प्रेड करती है and labors hard to store it well with the sweet food she makes. Labors hard means work hard, and she really works hard उसको बचाने के लिए. Okay, she spreads the wax and then she stores it really well और उसको हनी में, शहद में कन्वर्ट कर देती है. Okay, so this is a very short poem and it has a very simple meaning. Just pause the video and try to read it once. बच्चा, while you are reading, what you have to make sure कि आप रीड करते करते समझ रहे हैं कि हनी बी में क्या क्या क्वालिटीज़ है. What are the qualities that the honey bee has? Just point it down. Okay, just note it down. Great. These are some new words. I already told you their meaning. You can quickly write them down. Now, the main question which comes from our objective is, who in your life is similar to the bee in the poem? Give reason for your answer. आपको अपनी लाइफ में कोई ढूंढना है. वो कोई इंसान हो सकता है, कोई जानवर हो सकता है, कोई थिंग हो सकती है, कोई फीलिंग हो सकती है, कोई थॉट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. कोई ऐसा चीज़ ढूंढनी है जो हनी बी की तरह है. ओके, और आपको ये कैसे करना है, देखिए. हाउ टू फाइंड सिमिलर. पर्सन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. पहले आप हनी बी की क्वालिटीज़ लिखेंगे. लाइक आई हैव रिटन हार्ड वर्किंग. ऐसी आप ढेर सारी जितनी आपको समझ में आती है हनी बी की क्वालिटीज़ लिखेंगे. और राइट साइड में आप उस इंसान की या फिर उस चीज़ की क्वालिटीज़ लिखेंगे जो हनी बी से सिमिलर है. एंड यू हैव टू मेक श्योर दोनों की क्वालिटीज़ सिमिलर हो. ओके, फॉर एग्जाम्पल आपने हनी बी का क्वालिटी लिखा है हार्ड वर्किंग, तो जो दूसरा चीज़ आप लिखने जा रहे हैं, यू हैव टू मेक श्योर वो चीज़ भी हार्ड वर्किंग हो. ओके, सो बेसिकली दोनों का क्वालिटीज़, हनी बी का और दूसरी चीज़ का क्वालिटी सेम होना चाहिए. ओके, हनी बी हार्ड वर्किंग है तो दूसरी चीज़ भी हार्ड वर्किंग होनी चाहिए, या दूसरा इंसान भी हार्ड वर्किंग होना चाहिए. ओके, एंड वंस यू हैव डन दिस, हाउ विल यू आंसर? दिस इज द फॉर्मेट. यू विल राइट, इन माई लाइफ डैश इज सिमिलर टू द बी इन द पोम. फॉर डैश में आपका कुछ भी आ सकता है. ओके, आपको लिखना इस तरीके से है. In my life, dash is similar to the bee in the poem. Up you have to give reason. I say this because, like bee, she, he, it, they also. आपको लिखना है कि bee की तरह वो भी, and आगे you have to continue. Okay? पहले आपको सोचना है कौन हनी बी की तरह सिमिलर है, क्वालिटीज़ देख के, और फिर आपको बताना है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो हनी बी से सिमिलर है. ओके, उसके लिए बहुत ध्यान से आपको पहले हनी बी की क्वालिटीज सोचनी है, फिर उस चीज़ की क्वालिटीज हनी बी से मैच करनी है. ओके, नाउ बच्चा पॉज द वीडियो एंड डू दिस वर्क. ग्रेट. नाउ लास्ट पार्ट ऑफ द पोएम टुडे इज, नाउ इमेजिन यू आर अ टीचर. ओके, इफ यू आर अ टीचर, हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस पोएम? राइट समरी ऑफ इट. जैसे हम आपको पोएम की समरी लिखाते हैं स्कूल में, वैसे ही अब आपको सोचना है कि आप टीचर हैं और आपको ये पोएम मिली है और आपको इसका समरी लिखना है अपने बच्चों को लिखाने के लिए. ओके, एंड द बेस्ट पार्ट इज यू कैन गिव योर ओन एक्सप्लेनेशन. ज़रूरी नहीं है कि आप बोलें ये हनी बी का कहानी है. आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ये एक मदर का कहानी है जो बहुत हार्ड वर्किंग है, जो हनी बी की तरह घर बनाती हैं अपने बच्चों के लिए. जैसे हनी बी अपने बच्चों के लिए हनी बनाती है, वैसे ही वो अपने बच्चों के लिए फूड बनाती है. ओके, ये लिखा हनी बी है, पर आप इसको कैसे भी समझ के अपनी तरफ से एक्सप्लेन करना है. एंड यू हैव टू राइट समरी. समरी मीन्स ब्रीफ में आपको क्या समझ आया है, दैट यू हैव टू राइट इट इन समरी. बच्चा मेक श्योर यू आर राइटिंग एटलीस्ट 6 to 7 lines. ओके, okay, I hope you don't have any doubt. If you have any doubt, you can ask me, and if you don't have any doubt, quickly complete your work and send it. Okay, those of you who are in
Hetal Didi's, Mohini Didi's, and Devanshi Didi's team, you will send it to them. All the kids will send it to me on WhatsApp. Okay? Okay, bacha. I hope you have understood. If not, you can ask again. Okay, on WhatsApp. Okay, bacha. Happy learning, everybody. I will see you in the next class.